friends, today I'm going to talk about हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लैंडमार्क जजमेंट्स। तो आज हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसके बारे में बात होगी। एक आउटर समरी रहेगी आपके लिए कि हर एक जजमेंट में क्या रूलिंग आई थी एंड किस बेसिस पे कोर्ट ने डिसीजन दिया था। So today I'm going to talk about the landmark judgment of Hindu Marriage Act 1955, and this landmark judgment are going to be very helpful for you in the upcoming years, ताकि आप कभी भी किसी भी चीज में फंसे या फिर इस किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना हो, then it would be very helpful for you and it will help you to guide in a proper way. The first case in this series is Sarla Mudgal versus Union of India. Now Sarla Mudgal versus of Union of India 1995 का केस एक फ्री फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक हस्बैंड हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है ताकि वो सेकेंड मैरिज कर सके, देन दैट इज इलीगल, क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया था एज पर हिंदू लॉ। पहले वो हिंदू था, देन वो कन्वर्ट हो रहा था ताकि वो फिर से दोबारा सेकेंड मैरिज कर सके। सो ही वॉज कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम, क्योंकि वहां पे सेकेंड मैरिज वैलिड है। नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज said that it just जो सैंक्टिटी है मैरिज की एंड जो मैरिज वो कर रहे हैं वो इलीगल है। सो इन दिस केस, पर्टिकुलर केस, जो रूलिंग थी वो अगेंस्ट गई हस्बैंड की। So this landmark judgment is regarding the conversion from one religion to another religion to get married again, to do second marriage again. Now coming back to this series of landmark judgment, second case is Lily Thomas versus Union of India. Now we'll discuss about this case study and we will discuss about the judgment that has been given by the court regarding this. Now second landmark judgment that we were going to discuss about is Lily Thomas versus Union of India. Now in Lily Thomas versus Union of India, it is under Hindu Marriage Act where the person is already married but he is again getting married to another woman. Now as per Hindu Marriage Act, if you are already married and it only gives you monogamy, मतलब अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखो, अगर आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो तो पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। अंडर सेक्शन 11 अगर आप सेकेंड मैरिज करते हो तो देन इट इज कंसिडर्ड वॉइड एंड एज अ सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो एंड विदाउट गिविंग डिवोर्स टू योर वाइफ, अगर आपने डिवोर्स नहीं दिया है एंड विदाउट गिविंग डिवोर्स टू योर फर्स्ट वाइफ आप दोबारा से सेकेंड मैरिज करते हो, देन दैट मैरिज वुड बी वॉइड। एंड इसको कवर करता है हमारा सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, जहाँ पे बाइगैमी अलाउड नहीं है। So as per Hindu Marriage Act, this is also the one of the landmark judgment that clearly define that monogamy is only allowed and bigamy is not allowed in Hindu Marriage Act. तो Supreme Court का जो judgment था वो against husband था। So this is the brief fact and the important fact about this landmark case that you need to be very careful about. If you are going for a second marriage, then it is a compulsion that you have to give divorce to your first wife as per Hindu Marriage Act 1955. Only monogamy is allowed and it is upheld in this particular case that monogamy is only allowed in as per Hindu Marriage Act 1955. Bigamy is not allowed. You can only get married to a person अगर आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दिया, आपने पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया है और फिर आप फिर से दोबारा शादी कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगी, वो वॉइड होगी, इलीगल कंसिडर किया जाएगा एंड आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो बी रियली अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सिर्फ मोनोगैमी ही अलाउड है, पॉलीगैमी या बाइगैमी अलाउड नहीं है। So this was the landmark judgment that I needed to share with you. Now coming back to the list of landmark judgment, we will come to our third point, that is Ramesh Chandra Daga versus Rameshwari Daga. Now what is this landmark case and how it is related to Hindu Marriage Act 1955? We will discuss about this as well. So stay tuned with me. Don't skip this video, guys. Now this case that is related to Ramesh Chandra Daga versus Rameshwari Daga. Now this was his second wife. Without dissolving the marriage, first marriage, you cannot enter into a second marriage as per Hindu Marriage Act 1955. Now this is another landmark judgment where Supreme Court has held that you need to follow the rituals and custom, and
it was clearly highlighted in this particular case whether it was duly performed or not. Means as per Hindu Marriage Act, there are certain things that needs to be followed. First thing is that you need to follow. You have to give divorce to your first wife before entering into next marriage, and you have to follow the rituals that is really necessary as per Hindu Marriage Act 1955. That is Sat Vedas and all the ritual that are traditionally followed in Hindu religion. Now, as per Hindu Marriage Act, this particular thing that was being filed for maintenance, without dissolving your first marriage, you are entering into second marriage, then that second marriage is considered null and void, and you could not be a legally wedded wife of a person. तो यहाँ पे रामेश्वरी दागा was the second wife of I am just addressing her second wife, but what court has discussed and given a decision on that the second marriage is null and void. आप जब तक कोर्ट आपको जुडिशियली सेपरेट या डाइवोर्स आप नहीं ले लेते हो प्रॉपरली from your first wife, then your second marriage is not valid. So this was the judgment, and this is the landmark case, that is Ramesh Chandra Daga versus Rameshwari Daga. It not only talks about the validity of second marriage, but it also talks about the rituals and ceremonies that needs to be performed while you are getting married with a person in as per Hindu Marriage Act 1955. So next we are moving towards, that is Revanna Siddhappa versus Mallikarjun 2011. This is also the landmark case that needs to be discussed on, and I'll explain you the primary factor about this. So stay connected with me, don't skip the video. I'm just telling you don't skip the video because ये भी जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर जुडिशरी. एंड अगर आप क्लैट दे रहे हो या फिर क्लैट भी नहीं दे रहे हो, आप एआईबी का एग्जाम भी दे रहे हो, तो लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं. सो डू फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट हैज बीन हाईलाइटेड ओवर हियर. तो आपको क्लैरिटी मिलती चलेगी कि जजमेंट्स क्या दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा. सो इट इज फॉर योर बेनिफिट. मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, यही मेरा मोटिव है. सो नेक्स्ट इन द सीरीज इज Revanna Siddhappa versus Mallikarjun 2011. So it talks about irretrievable breakdown of marriage can be a ground for divorce. यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की बात हो रही है. मतलब एक ऐसा ब्रेकडाउन मैरिज का जो फिर से रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. Now, what has happened here? The court has clearly said that it is a emotional harm to a person and a mental cruelty to a person. So the ground could be mental cruelty on which the divorce can be granted. So this landmark judgment talks about mental cruelty and irretrievable breakdown of marriage, where it could be held as a ground for divorce. तो इट गिव यू अ बेसिस. यहाँ पे आपको एक बेसिक ग्राउंड मिल जाता है डिवोर्स लेने के लिए. सो इट टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कोर्ट के द्वारा भी रिगार्डिंग दिस ग्राउंड. तो इस ग्राउंड के बेसिस भी वेयर यू आर मेंटली एंड इमोशनली गेटिंग हर्ट एंड इमोशनल क्रूएलिटी कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. तो अगर आपकी मैरिज ब्रेकडाउन हो रहा है, देन यू कैन नॉट फोर्स योरसेल्फ टू बी इन दैट मैरिज. अगर आप दोनों की कंसेंट है कि आपको एक दूसरे से सेपरेट होना है, म्यूचुअल कंसेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टेकिंग अ डिवोर्स और ग्रांटिंग अ डिवोर्स. दैट can be also a ground for separating or parting your ways. So this landmark judgment covers that feature, and it would be very helpful for you to understand this thing, that mutual consent and cruelty on the mental cruelty can be a ground for divorce. So it clearly highlight this fact, and this Revanna Siddhappa versus Mallikarjun 2011 clearly specifies these things in its case. Well, I'll make a detailed video regarding all these judgments, where their facts, their analysis, their judgments, and what court has observed will be helpful for you. Right now, I am just sharing the highlight of it, ताकि आपको एक brief idea मिल जाए. So this was the next case that I have talked about, and this is one of the landmark judgments जहाँ पे काफ़ी जगह इस चीज़ का यूज़ होता है, and काफ़ी जगह लोग इसे साइट भी करते हैं. So it will be very really helpful for your citation as well.
Now, as I have talked about in a previous case, Revanna Siddhappa versus Malika Arjun 2011, that emotional क्रुएलिटी के बेसिस पे अगर आप इमोशनली और मेंटली आपको इफेक्ट हो रहा है किसी भी चीज से, देन इट कुड बी अ बेसिस एंड ग्राउंड फॉर डिवोर्स. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट जजमेंट, दैट इज जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जसवाल मजूमदार. नाउ आई हैव अर्लियर टॉक्ड अबाउट, मैंने इसके बारे में बात करी थी कि म्यूचुअल कंसेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिवोर्स एंड इट कुड बी अ ग्राउंड. अगर आप दोनों सहमत हो कि आपको डिवोर्स लेना ही है, आपको एक साथ नहीं रहना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक डिवोर्स. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जसवाल मजूमदार. सो दिस particular case studies highlight this feature regarding the mutual consent. Without mutual consent क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं. mutual consent ये चीज होती है जहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही चाहते हैं कि वो डिवोर्स ले लें और वो अलग अलग अपनी लाइफ शुरू करें, क्योंकि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप डिवोर्स लें ही लें. या फिर एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है कि आप बहुत लंबे समय से एज एन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं ले रह रहे हैं, तब तो भी वो भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने का. बट जब तक म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है, मतलब टू टेक अ डिवोर्स इजिली, म्यूचुअल कंसेंट इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको ये बार बार मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए या फिर आपको समझाने ना पड़े कि दैट यू शुड लिव टुगेदर, या फिर एक पर्सन चाहता है आपके साथ रहना पर दूसरा पर्सन नहीं चाहता है, तो वहां पे डिवोर्स लेने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. ऐसा नहीं कि डिवोर्स नहीं मिलता है, बट यू हैव टू प्रूव दैट यू डू नॉट वांट टू लिव विद दैट एंड यू हैव टू गिव रियली क्लैरिफाइड थिंग्स दैट व्हाई यू वांट डिवोर्स फ्रॉम अ पर्सन. वो क्लैरिटी होनी चाहिए. डिवोर्स तुरंत नहीं हो जाता है, क्योंकि मैरिजेस आर समथिंग दैट इज वेरी होली इन आवर हिंदू मैरिज एंड हिंदू कल्चर. सो डिवोर्स का प्रोसीजर भी थोड़ा लेंदी होता है, लोग समझाते हैं. बट अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हो, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू एंड दैट वुड बी वन ऑफ द ग्राउंड टू टेक डिवोर्स फ्रॉम दैट. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जसवाल मजूमदार. Coming back again to our topic, that is another landmark judgment, that is Amarjeet Singh versus Union of India 2002. Then it is one of the most important judgment as well that clearly specifies and describes about, and we are going to discuss about this right now. So generally what happens, mainly जो petitions file होती हैं, either you can see it is from husband ends कि हमें divorce चाहिए ही चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर बार हस्बैंड के एंड से फाइल होती है, कई बार वाइफ्स के एंड से भी फाइल होती है. देन इट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड कि यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो अमरजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, यहाँ वाइफ को भी सेम लिबर्टी ग्रांटेड है, जहाँ पे वाइफ फाइल कर सकती है फॉर डिवोर्स. एंड जैसे कि इक्वालिटी हस्बैंड को दी गई है कि वो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, वैसे ही सेम वाइफ को भी लिए भी एक चीज ग्रांटेड है. सो इट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वाइफ वांटेड अ डिवोर्स, वाइफ चाहती थी डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड, तो शी फाइल्ड अ पिटिशन फॉर डिवोर्स. एंड दिस इज द एग्जाम्पल वेयर अमरजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, वेयर डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड टू अ वाइफ अगर वाइफ फाइल करती है तो. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइफ भी फाइल कर सकती है पिटिशन टू टेक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. सिर्फ हस्बैंड्स के पास ही ये हक नहीं होता है. तो जैसे कि मैंने पहले भी एक केस में बताया था जहां पे क्लियरली ये रेवन्ना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन केस, वेयर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वॉज अ ग्राउंड, जहाँ पे हम मेंटली हैरेस होते हैं, इमोशनली हम डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल क्रूरैलिटी के ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो. तो सेम चीज इस चीज के लिए भी एप्लीकेबल है, वेयर वाइफ कैन फाइल अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, अगर वो मेंटली परेशान हो रही है एंड शी इज इमोशनली नॉट फीलिंग वेल, मतलब इमोशनली वो काफी हर्ट है. तो जितनी इक्वालिटी, जितनी पावर एक मैन को ग्रांटेड है, उतनी ही पावर एक वेमेन को भी ग्रांटेड है. तो वेमेन कैन ऑल्सो गो फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, क्लियर वीडियो ऑन ऑल दिस टॉपिक, और एक टॉपिक पे बनाऊंगी मैं. बट दीज ऑल लैंडमार्क जजमेंट दैट हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर
is the example of landmark judgment that is related to Hindu Marriage Act 1955. And it was really important for you to understand what all these landmark judgments covers. So stay tuned with me on my channel, that is Advocate Anshulika, and for future updates hit the bell icon, subscribe my channel, share this video with everyone that is connected with you and your family members. Bye everyone.